সন্মানীয় বন্ধুসকল, আপোনালোকে সকলে অৱগত যে বিগত দিনসমূহত আমাৰ অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয়ববীয়া, বিশেষকৈ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক আমাৰ লোকসভা সাংসদত ফাইজ কৰাৰ লগতেই বিভিন্ন ধৰণৰ আক্ৰমণমূলক ব্যৱস্থা এই চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে। লগতেই বিগত দিনবিলাকত দেশৰ সামগ্ৰিক যি সমস্যা, লগতেই অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ পৰা আদি কৰি যিবিলাক সমস্যা উদ্ভৱ হৈছে তাৰ বিষয়ত আমাৰ অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে এখন সংবাদমেল পাতি এই কথাখিনি অৱগত কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ অনুৰোধ কৰিছিল আৰু সেই মৰ্মে আমি আজি আপোনালোকক নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। আমাৰ মাজত আমাৰ জ্যেষ্ঠ নেতা প্ৰাক্তন প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ঘাটৰ ছাৰকো আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। মই কালি প্ৰথমতেই আমাৰ এই সংবাদমেলৰ সম্বোধন কৰিবৰ কাৰণে মই ঘাটৰ ছাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ। মই এই বিষয়ত ক'বলৈ দিবলৈ অপৰাধ। এনেকা এটা অৱস্থা সৃষ্টি হৈছে। তাৰ পৰৱৰ্তী কালত আপোনালোকে আকৌ আচৰিত, এনেকুৱা ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰত আজিলৈকে এনেকুৱা ঘটনা হোৱা নাই। আমি সকলোৱে জানো যে বিভিন্ন আপোনালোকে যিবোৰ বাতৰি কাকতত আছে বা মিডিয়াত আছে, প্ৰিণ্ট এণ্ড ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াত হওক, কোনোবা নহয় কোনোবা সময়ত মানহানিৰ কেছবোৰ হয়। আৰু মানহানিৰ কেছৰ যিটো ধাৰা তাত লিখা আছে যে মেক্সিমাম 2 বছৰ মেক্সিমাম 2 বছৰ শাস্তি দিব পাৰে। কিন্তু আজিলৈকে মানহানি কেছত কাকো 2 বছৰলৈকে শাস্তি দিয়া নাই। এই ক্ষেত্ৰত এজন মানুহে তেওঁ তাত ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে 2019 চনত কৰ্ণাটকৰ কোলাৰৰ এটা মিটিঙত যে আমাৰ দেশৰ ৰাইজৰ হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা লৈ কিছুমান লোক, নীৰৱ মোদী, ললিত মোদী, চৌস্কি, নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নামো লৈছিলে যে এনেকুৱা তেওঁলোকে হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা লৈ দেশৰ পৰা পলায়ন কৰিছে। আৰু এইটো আচৰিত কথা যে যিসকল মানুহে এনেকুৱা হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা মানে ৰাইজৰ টকা তেওঁলোকে মিছএপ্ৰপ্ৰিয়েশ্যন কৰিছে, তেওঁলোকৰ নামৰ লগত মোদী উপাধিটো আছে। সেই চুৰসকলৰ বুলি কৈছিলে। আৰু সেই কথাটোকে তেওঁলোকে টুইষ্ট কৰি তেওঁলোকৰ গুজৰাটৰ ঘটনাটো হৈছিলে কৰ্ণাটকত ইলেকশ্যন মিটিঙত, আকৌ কেছটো দিলে গুজৰাটৰ চুৰাটত। তাৰপিছত যিজন মানুহে দিলে, আগৰ যিজন মেজিষ্ট্ৰেট আছিলে, বিচাৰক আছিলে, তেওঁৰ সময়ত বিচাৰ চলি আছিলে। আৰু সেই মানুহজনে গৈ গুজৰাট হাইকোৰ্টত নিজৰ কেছটোকে ষ্টে কৰিব লাগে বুলি প্ৰেয়াৰ কৰিলে। ষ্টে হৈ গ'ল তেওঁৰ কেছটো। যেতিয়া এই গৌতম আদানীৰ প্ৰকৰণটো আৰম্ভ হ'ল, তাৰপিছত গৈ তেওঁ আকৌ হাইকোৰ্টত গৈ তেওঁ এপিল কৰি তেওঁ সেইটো খাৰিজ কৰাই কেছটো আৰম্ভ কৰালে। ইন দ্য মিন টাইম তাৰ হাকিমো এজন বদলি হৈ গ'ল। এতিয়া মাননীয় আদালতে এটা ৰায় দিছে, তাৰ ওপৰত মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই। আমাৰ যিসকল আমাৰ আইনজ্ঞ আছে তেওঁলোকে ওপৰৰ কোৰ্টত তেওঁলোকে তাৰ বিচাৰ ল'ব। কিন্তু তাতো এটা কথা আছে যে সেই আদালতেও ক'লে যে তেওঁৰ যিটো মানে ৰায় সেইটো এমাহলৈ ছাছপেণ্ড থাকিব। কিন্তু এইটো অতি আচৰিত ধৰণে লোকসভাৰ ছেক্ৰেটাৰীয়েটে সেইটো ৰাতি 24 ঘণ্টাৰ পিছতে তেওঁৰ সদস্য পদ খাৰিজ কৰি নটিচ জাৰি কৰিলে। তাতোতকৈ আচৰিত কথা, তাৰ দুদিনৰ পিছতে তেওঁ ঘৰ খালী কৰিব লাগে বুলি তেওঁলোকে নটিচ জাৰি কৰিলে। এই গোটেই কথাটো যদি আমি ভালকে বিশ্লেষণ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে এটা অপচেষ্টা এটা কৰিছে যে যিকোনো প্ৰকাৰে আদানীৰ কথাটো লোকসভাত এইটো আলোচনা হ'ব নালাগে। আৰু যিটো কথা আমাৰ মাননীয় ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই লোকসভাত উত্থাপন কৰিছিলে, এই একে অভিযোগ আমাৰ বিৰোধী দলৰ দলপতি
মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে ডাঙৰীয়াই ৰাজ্যসভাত উত্থাপন কৰিছিল। কিন্তু অতি আচৰিত ধৰণে আমাৰ লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াই এইবোৰ স্পঞ্জ কৰিলে, মানে বাদ দি দিলে, আৰু ৰাজ্যসভাৰ সভাপতি ডাঙৰীয়াও সেইবোৰ বাদ দি দিলে, যাতে সেইবোৰ লোকসভা বা ৰাজ্যসভাৰ ৰেকৰ্ডত থাকিব নালাগে। তথাপিও এই গোটেই কথাটো ৰাইজে গম পাইছে, আৰু এতিয়া ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই আকৌ কৈছে যে এই আদানীৰ কোম্পানীত 20,000 কোটি টকা যি চেল কোম্পানীৰ পৰা আহিছে, সেই টকাৰ মালিক কোনে এই টকা ইনভেষ্ট কৰিছিলে, এই চেল কোম্পানী। पवन सिंह घटवाल ने बहुत विस्तार से इस पूरे मामले के विषय में आपको बता दिया। 8 साल में आज देश की जा रहा है, और लगातार राहुल गांधी जी एक इकलौते ऐसे जनप्रतिनिधि, एक ऐसे नेता हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की गलत नीति, गलत योजना, भ्रष्टाचार के खिलाफ में सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाने वाले इकलौते नेता राहुल गांधी जी हैं, जिनकी आवाज को दबाने का काम। ये राहुल गांधी जी की आवाज नहीं, इस देश के मजदूरों की आवाज, इस देश के युवाओं की आवाज, इस देश के बेरोजगारों की आवाज, इस देश में महिला बहनों की आवाज, इस देश में किसानों की आवाज को राहुल गांधी जी सदन में उठाते थे। 4000 किलोमीटर की पदयात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, उस पदयात्रा के दरमियान, उस पदयात्रा के दौरान आपने उस पदयात्रा को देखा होगा, जो लोग परेशान थे वो लोग राहुल गांधी जी के पास में आते थे और राहुल गांधी जी से निपट कर रोते थे, अपनी व्यथा बताते थे। राहुल गांधी जी उन तमाम चीजों को लेकर सदन में बात की। राहुल गांधी जी एक राष्ट्रपुत्र के रूप में भारत में लगातार पूरी दुनिया उनको एक राष्ट्रपुत्र के रूप में देख रही है। जब दुश्मन हमारे सरहद के बॉर्डर पे दूसरे देश के सैनिक जब हमारी सरहद को क्रॉस कर रहे थे, तब राहुल गांधी जी सदन में उसके लिए आगाह करते थे, लेकिन उनकी बात को विपक्ष ने अनसुनी करी, उनकी बात नहीं सुनी, उनका जवाब नहीं दिया गया। जब कोरोना जैसी स्थिति इस देश में कदम रख रही थी, तभी राहुल गांधी जी ने आगाह किया था कि ये बहुत विस्फोटक होगा, बहुत भयानक होगा। उस समय भी उनकी बात को दबाने का काम किया गया। हालात आप लोगों ने देखे हैं किस प्रकार की स्थिति हुई। नोटबंदी के समय भी राहुल जी ने आगाह किया था, लेकिन लोग सदन में उनका जवाब इस देश के प्रधानमंत्री जी ने कभी जवाब नहीं दिया। सवाल तो राहुल गांधी जी पूछेंगे। अभी अडानी और मोदी जी का क्या संबंध है, उसके विषय पर राहुल जी चर्चा कर रहे हैं, उस पर सवाल पूछ रहे हैं। सेल कंपनी में 20,000 करोड़ रुपया आखिर किसका है, उसके इन्वेस्टमेंट पर बात कर रहे हैं। तो ये सवाल भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं खटक रहा है। अभी पवन सिंह घटवाल जी ने बताया जेपीसी जांच और जेपीसी गठन तो कई मामलों में हुई, पहले भी हुई, अभी इस मामले में क्यों नहीं हो रही है? पूरा विपक्ष एक मांग कर रहा है कि जेपीसी जांच होना चाहिए। मोदी जी के और अडानी जी के क्या संबंध है, वो इस पर सदन पर सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? उल्टा राहुल गांधी जी सदन में मत बोले। इसलिए कर्नाटक की एक घटना, जिस चुनाव के समय की घटना, जिसमें इस देश का पैसा लेकर भागने वाले जो भगोड़े हैं, उनका नाम राहुल गांधी जी ने लिया। और उसमें इतनी पीड़ा उनको क्या थी कि कर्नाटक का प्रकरण गुजरात में एफआईआर और गुजरात के अंदर सुनवाई, और सुनवाई के 24 घंटे के अंदर संसद सदस्य से उनकी सदस्यता को समाप्त कर देना। गुजरात में लोअर कोर्ट में फैसला आया। लोअर कोर्ट में फैसला आने के बाद उसका जो डिसीजन वो गुजराती में आता है। 24 घंटा तो उसको समझने में और बात करने में लगता है, लेकिन उस 24 घंटे के अंदर डिसीजन लेके राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता को खत्म करने का काम इतिहास में पहला ऐसा प्रकरण होगा जहां जो जनप्रतिनिधि संसद में इस देश की आवाज उठाने का काम करता है, उसके खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता षड्यंत्र कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी इस देश की परिस्थितियों के बारे में बोल मत पाए। मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान का कोई दूसरा व्यक्ति होगा जिन्होंने कन्या कहने वाला व्यक्ति अडानी आखिर 2 नंबर पर कैसे आ गया? इन 8 सालों में 2 नंबर में ऐसा क्या कर दिया कि 2 नंबर में वो आ गए? इन्हीं सभी चीजों को लेकर लगातार राहुल गांधी जी सवाल करते रहे। राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता खत्म कर दी। खत्म करने के बाद जो राहुल गांधी 20 साल से सांसद है, उनके मकान को भी तुरंत मकान को भी छोड़ने के लिए कहा गया। कोई बात नहीं, राहुल गांधी जी बहुत ईमानदार व्यक्ति है। राहुल गांधी जी उस परिवार से हैं जिन्होंने त्याग, तपस्या और बलिदान इस देश के लिए किया है। मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जी सड़क से लेके
सदन तक लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे। पूरे देश में आज राहुल गांधी जी के लिए लोगों के मन में एक अलग जगह है और हम तमाम कांग्रेस के साथी इसको लेकर अलग अलग तरीके से लोगों के साथ हैं। सत्याग्रह हम लोग कर रहे हैं। सत्य में जयते, सत्य कभी हारता नहीं और सत्य हमें जीतेगा, ये बात तय है। इन्हीं बातों को लेकर हम तमाम साथी आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। इससे आप सबका धन्यवाद।